بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں طوبہ خانم کے ساتھ حاتم شہریار کی حویلی سے باہر آیا۔ باہر احاطے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ احاطے کا بڑا آہنی گیٹ بند تھا اور وہ حاتم شہریار کے حکم کے بغیر نہیں کھل سکتا تھا۔ سیکیورٹی آفیسر نے قریب آ کر طوبہ خانم کے سامنے الرٹ ہو کر پوچھا، کیا آپ باہر جا رہی ہیں؟ طوبہ نے اپنے مزاج کے مطابق شاہانہ انداز میں کہا، ہاں گیٹ کھولو، لیکن خانم شہر میں گولیاں چل رہی ہیں، چلنے دو، تم حکم کی تعمیل کرو۔ وہ گیٹ کی طرف جانے لگا، پھر رک گیا، کچھ سوچتے ہوئے ہماری طرف گھوم کر بولا، آقا حاتم نے فرمایا تھا وہ کچھ عرصے تک روپوش رہیں گے، میں ان کی عدم موجودگی میں آپ کے احکامات کی تعمیل کرتا رہوں، لیکن میں ان سے انٹرکام پر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ طوبہ خانم اپنے بھائی حاتم شہریار کو گولی مار چکی تھی۔ حویلی کے اندر انٹرکام پر باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بولی، برادر حاتم روپوش ہیں، وہ کسی سے گفتگو بھی نہیں کریں گے، جو حکم دے رہی ہوں اس کی تعمیل کرو۔ وہ پلٹ کر گیا، اندر سے مطمئن نہیں تھا، اپنے ماتحتوں کو حکم دینا چاہتا تھا کہ وہ گیٹ کو بند رکھیں اور ہمیں گھیر لیں، اس وقت تک ہمیں باہر نہ جانے دیں جب تک آقا حاتم شہریار کی خیریت معلوم نہ ہو۔ یوں بات بگڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کے دماغ کو اپنے قابو میں کیا۔ اس نے فوراً ہی گارڈز کو گیٹ کھولنے کا حکم دے دیا۔ میں نے طوبہ سے کہا، تم ڈرائیو کرو، میں اس کے دماغ کو کنٹرول کروں گا۔ میں نے جتنی دیر طوبہ سے یہ بات کہی اتنی دیر تک سیکیورٹی آفیسر میری گرفت سے آزاد رہا۔ اس نے گرج کر ماتحتوں سے کہا، گیٹ بند کر دو۔ وہ گیٹ کھول رہے تھے، پھر بند کرنے لگے۔ طوبہ نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، وہ کم وقت گیٹ بند کرا رہا ہے، پرواہ مت کرو، گاڑی آگے بڑھاؤ۔ میں نے پھر افسر پر قبضہ جمایا۔ وہ پھر ایک بار گیٹ بند کرنے والوں سے گرج کر بولا، کیا میرا حکم مان کر مالکہ کو جانے سے روکو گے؟ گستاخی کی سزا جانتے ہو تم، اسے فوراً کھولو۔ وہ اپنے آفیسر کی حرکتوں سے کچھ حیران اور کچھ پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ ہماری کار حویلی کے احاطے سے باہر آ گئی۔ سیکیورٹی آفیسر چپ چاپ کھڑا ہوا تھا، پریشانی سے سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں انہیں روکنا چاہتا ہوں لیکن جانے کی اجازت دے چکا ہوں، یہ باہر جا چکے ہیں، میں فائر کر کے کار کا پہیہ بیکار کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کے دماغ کو اس حد تک ڈھیل دی تھی کہ وہ اپنے طور پر سوچ سکتا تھا۔ اس نے دور جانے والی کار کے پہیے پر گولی چلانے کے لیے اپنی گن سیدھی کی۔ میں نے اس کے ذہن سے بھلا دیا کہ اس نے گن کیوں سنبھالی ہے۔ وہ یاد کرنے لگا، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک ماتحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، ضرور جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنا بھی بھول گیا، اپنے ہونٹ سکیڑ کر سیٹی بجانے لگا۔ چند ماتحتوں نے اسے دیکھا تو اس نے آنکھ ماری۔ تمام ماتحت چونک گئے، ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ آفیسر نے اشارہ کرنے کے انداز میں منہ سے آواز نکالی، شش شش۔ تمام گارڈز اس کی حرکتوں سے ذہنی طور پر الجھ گئے تھے، سوچ رہے تھے اسے صحیح الدماغ سمجھا جائے یا نہیں۔ ویسے اس نے کوئی قابل اعتراض حرکت نہیں کی تھی۔ وہ حیران ہو سکتے تھے، اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے شش شش کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے انہیں قریب بلایا۔ وہ سب رک رک کر سوچ سوچ کر قریب آنے لگے۔ ایک نے جھجکتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہش! اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سبھی نے خاموش رہنے کے لیے سختی سے ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ دراصل میں افسر کو ایسی ہی حماقتوں میں مبتلا رکھ کر طوبہ کے ساتھ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ افسر نے پھر ہونٹ سے کوڑ کر سیٹی بجاتے ہوئے ماتحتوں کو سمجھایا کہ وہ اس کی طرح بھی سیٹی بجائیں۔ سیکیورٹی گارڈز کو اپنے آفیسر کا ہر جائز اور ناجائز حکم ماننا پڑتا ہے۔ وہ تمام گارڈز الجھن میں پڑ گئے کہ یہ کیسا حکم ہے، آخر کیوں احمقوں کی طرح سیٹی بجائی جائے۔ افسر نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر ڈانٹ کر کہا، کیری آن مائی آرڈر۔ وہ سپاہی تھے، اپنے کمانڈر کے حکم پر مجبوراً سیٹی بجانے لگے۔ جب وہ ایک حکم پر انسانوں کو گولیاں مار سکتے تھے تو سیٹی بجانے میں کیا مذائقہ تھا؟ اس وقت وہ مزاح کا خیز تماشا بن گئے تھے۔ اگر شہر میں امن و امان ہوتا تو وہاں تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ طوبہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اس نے اچانک بریک لگائے۔ میں غافل تھا، ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ بولی، سوری، مجھے اچانک راستہ بدلنے کے لیے بریک لگانی پڑی۔ میں نے پوچھا، راستہ کیوں بدل رہی ہو؟ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر آگ ہی آگ ہے، دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے، زبردست جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہم ادھر سے جائیں گے۔
मजबूरी है तो फिर इधर ही से चलो। ये कौन सा रास्ता है? ये रास्ता हमें शहर से बाहर ले जाएगा। तूबा, हमें यह शहर छोड़ना होगा। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया है। अब वो मुतल्लका हुकाम को हमारे खिलाफ रिपोर्ट पेश कर रहा होगा, हातिम शहरियार को तलाश कर रहा होगा। उसे हवेली में आका नज़र नहीं आएगा तो हालात हमारे खिलाफ हो जाएंगे। क्या उसके दिमाग को मज़ीद काबू में नहीं रख सकोगे? आखिर कब तक काबू में रखूँगा? मुझे दिमागी तौर पर हाजिर रहना पड़ता है। कमबख्त को गोली मार देनी चाहिए थी। अब भी उसे हलाक कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे गार्ड्स हमारे खिलाफ बोलेंगे। आखिर कितनों को कत्ल करके ज़ुबानें बंद की जा सकती हैं? दुरुस्त है, लेकिन पारस शहर में है। क्या हम उसे छोड़कर जाएंगे? मैं उसे ख्याल ख्वानी के ज़रिए कहता हूँ कि वो हमसे शहर के बाहर मुलाकात करे। यहाँ से दूर किसी जगह का नाम बताओ। उससे कहो वो परवान के रास्ते पर पहली चौकी पर आकर मुलाकात करे। मैंने पारस को मुखातिब किया, फिर अपने हालात बताए। उसने कहा, आपका फ़ैसला दुरुस्त है। हमारा गाइड जलाल शाह भी यही कह रहा है। ये शहर आफत ज़दा है। मौत पुरअमन शहरियों को भी अपनी लपेट में ले रही है। पारस ने जलाल शाह से कहा, हम अभी परवान के रास्ते पर जाएंगे। वो बोला, नहीं ब्रादर, उस रास्ते पर कम्युनिस्ट मिलिशिया है। हमारे मुल्क से रूस तो चला गया, लेकिन कम्युनिस्ट्स को छोड़ गया है। फिर हमें किस समत जाना चाहिए? हम वारदक के रास्ते पर जाएंगे। वहाँ किधर क़याम करेंगे? वहाँ हशमताबाद नामी एक छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती में हज़्ब मोमिन के मुजाहिदीन हैं। वहाँ हम पूरी तरह महफूज रहेंगे। मैं पारस के ज़रिए सुन रहा था। जलाल शाह ने कहा, हुजूर अरसलान साहब को भी हमारे साथ होना चाहिए। वो मेरा अकीदतमंद था, मुझे हुजूर कहता था। पारस ने कहा, हुजूर बहुत पहुँचे हुए हैं, वो हशमताबाद पहुँच जाएंगे। मैंने तूबा से कहा, जलाल शाह की मालूमात के मुताबिक परवान के रास्ते में कम्युनिस्ट मिलिशिया है। हमें वारदक के रास्ते पर जाना चाहिए। पारस तुम्हें हशमताबाद में मिलेगा। वो गाड़ी को एक छोटे से कच्चे रास्ते पर मोड़ते हुए बोली, हमें काबुल शहर के बाहर ही बाहर 10 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना होगा। लंबी ड्राइव है। फिक्र ना करो, ईंधन का कांटा बता रहा है कि टैंकी फुल है। डिग्गी में एक्स्ट्रा पेट्रोल का कैन ज़रूर होंगे। बात सिर्फ पेट्रोल की नहीं, सुबह से उसकी खैरियत मालूम नहीं हुई है। मैंने अनजान बनकर पूछा, किसकी खैरियत? वो कनखियों से देखकर बोली, समझ रहे हो और अनजान भी बन रहे हो। उसका नाम क्यों नहीं लेती? कौन सा नाम लूं, हमाद या पारस? तुमने दोनों नामों की खिचड़ी पकाई थी। वो हंसती हुई बोली, यानी हमाद से हमा और पारस से रस, तो नाम हुआ हमारस। हम दोनों हंसने लगे। फिर वो बोली, किसी काम में जल्दी करो तो भूल चूक हो जाती है। अब क्या हो गया? जल्दी में मोबाइल फ़ोन लाना भूल गई। फ़ोन होता तो अभी हमारस से खूब बातें करती। सफ़र तवील था। मैंने उसका दिल बहलाने के लिए कहा, मैं फ़ोन किए बगैर भी पारस से तुम्हारी गुफ्तगू करा सकता हूँ। सच? वो खुशी से चीख पड़ी। फिर गाड़ी रोक कर बोली, बात कराओ। गाड़ी चलाओ और किसी बस्ती से गुजरो। हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया है। अगर पारस से तुम्हारी बात कराऊंगा तो दोपहर के खाने का वक्त भी गुजर जाएगा। खाना मिल जाएगा, पिछली सीट पर बंद डिब्बों में मौजूद है। प्लीज़ पारस से बात कराओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी टेलीपैथी के ज़रिए उससे किस तरह गुफ्तगू करूंगी। क्या तुम मजाक समझ रही हो? मजाक नहीं है तो ख्वामखा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? पहले टेलीपैथी की तकनीक समझ लो। मैं पारस के दिमाग में जाऊंगा, उसकी सोच की लहरों को ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपने दिमाग में खींचूंगा, फिर उसे तुम्हारे दिमाग में पहुंचाऊंगा। तो फिर खींचने में और उसे मेरे दिमाग में लाने में काफ़ी वक्त लगेगा। हरगिज़ नहीं, ये चश्मे ज़दन में होगा। ये तकनीक मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। फिर भी चलो बातें कराओ। मैं उसे तुम्हारे पास ला रहा हूँ, लेकिन तुम ड्राइविंग पर ध्यान रखना, वरना हम दोनों गायब दिमाग रहेंगे तो ये गाड़ी हमें किसी गड्ढे या खाई में पहुंचा देगी। मैं वादा करती हूँ मोहतात ड्राइविंग जारी रहेगी। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसके दिमाग में आया। थोड़ी देर तक उसे बेचैनी से इंतज़ार करने दिया। फिर पारस के लहजे और स्टाइल में बोला, हेलो तूबा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? वो खुश होकर बोली, हाँ सुन रही हूँ। तुम पारस ही हो ना? ज़रा ठहरो, अभी बात करती हूँ। उसने कनखियों से मुझे अपने पास बैठे हुए देखा। मेरी नज़रें विंड स्क्रीन के पार साकित थीं। उसकी समझ में आ रहा था कि मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हूँ। मैंने उसके अंदर सोच के ज़रिए पूछा, तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? पारस से बातें करो। उसने पूछा, क्या तुम भी मौजूद रहोगे? मैं तुम्हारे दिमाग में रहूँगा, तभी पारस की सोच की लहरों को पहुँचाता रहूँगा। फिर मैंने पारस के लहजे में कहा, तूबा, पापा की मौजूदगी लाजमी है, वरना मेरी बातें तुम्हारे पास नहीं पहुँचेंगी। वो बोली, पारस ये तो कमाल हो गया, हम फ़ोन के बगैर बातें कर रहे हैं। फ़िलहाल पापा को टेलीफोन समझ लो, हम उनके ज़रिए बोल रहे हैं।
ہاں بس یہی ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے، میں نے اپنے لہجے میں کہا۔ کہو تو چلا جاتا ہوں۔ پھر فوراً ہی پارس کے لہجے میں بولا، نہیں پاپا، آپ کے جانے سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن طوبیٰ مجھے کباب میں ہڈی سمجھ رہی ہے۔ وہ بولی، نہیں بالکل نہیں، تم ہمارے بزرگ ہو، ہمیں بزرگوں کے سائے میں رہنا چاہیے۔ شاباش، بڑی سعادت مند بچی ہو۔ پھر پارس کے سٹائل میں بولا، پاپا اب آپ خاموش رہیں، ہمیں کچھ باتیں کرنے دیں۔ ضرور باتیں کرو، کیا میں منع کر رہا ہوں؟ آپ بولتے رہیں گے تو کیا ہم خاک بولیں گے؟ لیکن میں بول کہاں رہا ہوں؟ بزرگوں کی یہی بری عادت ہے، بولتے بھی جاتے ہیں اور خاموش رہنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھو پارس، تم اپنے باپ سے گستاخی کر رہے ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولی، ٹھہرو میری بات سنو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ میں نے پوچھا، جھگڑا میں کر رہا ہوں؟ تم بھی پارس کی حمایت میں بول رہی ہو۔ نہیں، میں دونوں سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے پارس کے لہجے میں پوچھا، طوبیٰ دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے بھی جھگڑالو کہہ رہی ہو؟ میں پوری ایک رات تمہارے ساتھ رہا تھا، کیا تم نے مجھے بدمزاج اور جھگڑالو پایا تھا؟ بالکل نہیں، تم تو بہت سلجھے ہوئے شریف نوجوان ہو۔ میں نے اپنے لہجے میں کہا، اچھا تو وہ سلجھا ہوا ہے، شریف ہے اور میں بدماش ہوں، جھگڑا کرتا ہوں؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، خدا کے لیے یہ بحث ختم کرو۔ بحث ختم ہو جائے گی، پارس سے کہو مجھ سے معافی مانگے۔ پھر میں نے پارس کے لہجے میں کہا، ارے واہ پاپا، میں کس بات کی معافی مانگوں؟ تم نے باپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہرگز نہیں، طوبیٰ کے بیان کے مطابق میں سلجھا ہوا شریف نوجوان ہوں۔ وہ بولی، بے شک تم نے گستاخی نہیں کی، لیکن یہ تمہارے باپ ہیں، معافی مانگ لو۔ میں نے اچانک ہی خیال خوانی ختم کرتے ہوئے کہا، ارے گاڑی سنبھالو۔ اس نے فوراً ہی اسٹیئرنگ کو قابو میں کیا، ورنہ گاڑی سڑک کے کنارے ایک بڑے ٹیلے سے ٹکرانے والی تھی۔ وہ گاڑی روک کر بولی، تم باپ بیٹے نے تو مجھے توبہ کروا دی ہے، تم کیسے باپ ہو؟ اتنی عمر ہو گئی، جوان بیٹا پیدا کر دیا، مگر یہ عقل نہیں آئی کہ بیٹے اور اس کی گرل فرینڈ کے درمیان نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے ناگواری سے پوچھا، کیا تم نوجوانوں کو زیب دیتا ہے کہ اپنی باتوں میں بزرگوں کا ادب لحاظ بالکل ہی بھول جاؤ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا بیٹا جوان لڑکیوں کا دیوانہ نہیں ہے، میں نے ایک رات میں ہی اسے پہچان لیا ہے۔ غلطی تمہاری تھی، تم کچھ زیادہ ہی بزرگ بن رہے تھے۔ ہاں میں خپتی بوڑھا ہوں، گاڑی چلاؤ۔ چلاؤں گی، پہلے وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ اس سے بات کراؤ گے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کنویں میں دھکیلنا نہیں چاہتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو باپ کا نہ ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ آج اس نے تمہارے لیے مجھ سے بدتمیزی کی، کل کسی اور کے لیے تمہیں ٹھکرا دے گا، اس سے پہلے تم اسے ٹھکرا دو۔ میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے، تمہارے لیے کوئی دوسرا داماد پسند کروں گا۔ تم سٹھیا گئے ہو، جو باپ سگے بیٹے کا نہ ہوا وہ منہ بولی بیٹی کا کیا ہوگا؟ تم میری بات الٹا کر کے مجھے بول رہی ہو؟ کیا تم ٹھنڈے دماغ سے باتیں نہیں کر سکتے؟ نئی نسل گستاخیاں کرتی ہے اور بزرگوں سے کہتی ہے دماغ ٹھنڈا رکھو۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے بحث نہیں کر سکتی۔ میں کب کہتا ہوں کہ بحث کرو؟ اتنی دانش مندی سے باتیں کرتے ہو اور بچوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتے۔ اس نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے، تیموری آن کو للکارا ہے۔ میں اسے خیر جانے دو۔ وہ خوش ہو کر بولی، یعنی کہ تم نے معاف کر دیا ہے؟ تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ تم بہت گریٹ ہو، پلیز اس سے بات کراؤ۔ اچھی بات ہے، لیکن اسے سمجھا دینا، آئندہ میرا ادب کرے۔ سمجھا دوں گی، تم سے بھی التجا ہے ہمارے درمیان نہ بولنا۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر پارس کے لہجے میں بولا، ہیلو طوبیٰ، میں نے پاپا سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، بتاؤ کیسے ہو؟ اچھا ہوں، کیا تم مجھے یاد کرتی ہو؟ ہاں، قسم سے دن رات یاد کرتی ہوں۔ میں نے باپ بن کر کہا، طوبیٰ قسم کھا کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کوئی کسی کو دن رات یاد نہیں کر سکتا۔ دن رات میں کتنے ہی کام ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کو سوتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا۔ وہ بولی، او پاپا تم پھر مداخلت کر رہے ہو، میں تو صرف غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ انسان تو خدا کو بھی دن رات یاد نہیں کرتا۔ قسم کھا کر جھوٹی بات کا یقین دلانا گویا محبت میں دھوکہ دینا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، میں نے محبت میں شدت پیدا کرنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ انتظار میں وہ رات بھر تارے گنتا رہا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ واقعی تارے گن رہا تھا۔ تم بوڑھے ہو، ہم نوجوانوں کی محبت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، پلیز ہمیں باتیں کرنے دو۔ پھر وہ پارس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ہاں پارس، میں کہہ رہی تھی کہ 3 گھنٹوں کے اندر حشمت آباد پہنچوں گی، تم کب پہنچ رہے ہو؟ میرا تو دل کہتا ہے میں ابھی اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ میں نے لہجہ بدل کر کہا، نہیں بیٹے، دل کبھی نہیں کہتا، دل انسان کے جسم میں خون پمپ کرنے کا بس ایک آلہ ہے۔
दरअसल ये तुम्हारा जहन सोचता है और तुम दिल को इल्ज़ाम देते हो कि वो बेचारा कह रहा है। पापा मोहब्बत में ऐसे ही कहते हैं। बेटे, मोहब्बत में गलत कहने से आगे जाकर मोहब्बत गलत हो जाती है। वो बेजार होकर बोली, ओ पारस, इस तरह तो मैं कभी तुमसे बातें नहीं कर सकूंगी। मैंने कहा, बेटी, बुजुर्गों के साए में रहकर बातें करोगी तो बोलने का सलीका आएगा। वो बोली, तुम्हारे जैसे बुजुर्गों के साए में बातें करना तो कुजा, सांस लेना भी दुश्वार है। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, मुझे पारस से बातें करने दोगे या नहीं? भाई खूब बातें करो, लेकिन ज़ुबान बयान की गलतियों से परहेज़ करो। अच्छी बात है, अब खामोश रहो। हाँ पारस, बोलो। मैंने पारस के लहजे में कहा, क्या बोलूँ? मैंने तो अब से पहले किसी बुजुर्ग के साए में रोमांस नहीं किया। मेरी भी पहली बार शामत आई है। बर्दाश्त करो तूबा, ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुरुस्त कहते हो, इस वक्त मैं खून के घूंट पी रही हूँ। मैंने कहा, मैं सब सुन रहा हूँ। तुम दोनों मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रहे हो, खून के घूंट पी रहे हो। एक तो बिछड़े हुए दिलों को मिला रहा हूँ, ऊपर से बदनाम हो रहा हूँ। बेहतर है कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। मैं उसके दिमाग से निकल आया। वो आवाज़ें देने लगी, पारस तुम खामोश क्यों हो? पारस बोलो, क्या राबता ख़त्म हो गया है? उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। मुझे घूर कर देखते हुए पूछा, ये क्या हरकत है? तुमने पारस को मुझसे दूर कर दिया है। मैं तुम्हारे दिमाग से निकल आया हूँ, राबता तो लाजमी ख़त्म होगा। मैंने अपने दिमाग से तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। मैं मुसीबत हूँ, इसलिए खुद ही चला आया। तुम्हें टेलीपैथी क्या आ गई है? मिजाज ही नहीं मिलता। चलो बुलाओ अपने बेटे को। मैं पारस को कभी उससे मिलाता रहा, कभी उससे दूर करता रहा। फिर इसी तरह उसे बहलाता हुआ हशमत आबाद पहुँच गया। पारस और जलाल शाह हमसे पहले पहुँचे हुए थे। तूबा उसे देखकर खुशी से खिल गई। उसका जी चाहता था बड़े प्यार से मिले और प्यार जाहिर भी ना हो। उसका ख्याल था कि उसने पारस के सामने अभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, जबकि वो थोड़ी देर पहले बेख्तियार इजहार कर चुकी थी। पारस भी कोई अनाड़ी नहीं था कि उसे कुछ बताने की ज़रूरत पेश आती। वो बोली, पहली मुलाकात में तुम हमाद थे, दूसरी मुलाकात में पारस हो। क्या आइंदा भी गैर मुतवक्के इंकशाफ होगा? मैं बोला, अगली बार इंकशाफ होगा कि मैं इसका बाप नहीं हूँ, ये मेरा बाप है। वो नागवारी से बोली, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, तुमने बहुत सताया और जलाया है। पारस ने पूछा, तुम्हें पापा से शिकायत है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछती हूँ, ऐसे बाप के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारते हो? आखिर बात क्या है? मेरे पापा तो बहुत ग्रेट हैं। ग्रेट हैं ये तुम कह रहे हो? घंटे भर पहले की बातें इतनी जल्दी भूल गए? पारस ने हैरानी से पूछा, घंटे भर पहले क्या हुआ था? अरे तुम मौजूद थे और मुझसे पूछ रहे हो? मैं वहाँ से खिसक कर जलाल शाह के पास आ गया। तूबा पारस से कह रही थी, अभी सफ़र के दौरान मैंने कई बार तुमसे राबता किया, लेकिन जब भी बातें करती थी ये हजरत बीच में बोलने लगते थे। पारस ने तशवीश से पूछा, तूबा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वो बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, 1 घंटे पहले की बातें भूल रहे हो? तूबा बातें कैसे हो सकती थी? मैंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कई बार तुमसे राबता। वो बात काट कर बोली, मैं मोबाइल फ़ोन तो हवेली में छोड़ आई हूँ। पापा ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए हमारा राबता कराया था। तुम्हें मेरे दिमाग में ले आए थे और तुमने मुझसे बातें की थीं। वो कह कहे लगाने लगा। तूबा ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? वो बोला, हमारे दरमियान बहुत देर तक राबता रहा है ना? हाँ बिल्कुल, इतनी लंबी मुसाफत कैसे तय हो गई कुछ पता ही ना चला। वो हंसते हुए बोला, ये पापा का नफसियाती तरीक़ाकार है। उन्होंने सफ़र के दौरान तुम्हें बोर होने नहीं दिया, मुझे तुम्हारे पास पहुंचाते रहे और तुम मुझसे बातें करती रहीं। अच्छी तरह बातें नहीं हो सकीं, वो हमारे दरमियान बोल पड़ते थे, बार बार अपनी बुजुर्गी जताने लगते थे। जब तुमसे झगड़ा कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन तुमसे बातें करते रहने के लिए उन्हें मजबूरन बर्दाश्त करती रही। मुख्तसर ये कि तुमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, तुम्हें मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, यूं लग रहा था जैसे तुम मेरे पास हो, इसलिए मैं पापा को ग्रेट कहता हूँ। मैं समझी नहीं, मैं मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने तुम्हारे अंदर मेरे वजूद का चिराग जलाए रखा, इस लिहाज से वो ग्रेट है। लेकिन यह कि मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं आया था और ना ही तुमसे कोई बात की थी। वो हैरानी से बोली, क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। टेलीपैथी के इल्म में ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि पापा मुझे तुम्हारे अंदर और तुम्हें मेरे अंदर पहुँचाकर एक दूसरे से बातें करवाते रहें। लेकिन मैंने तो साफ तौर से तुम्हारी आवाज़ें, तुम्हारी बातें सुनी हैं। वो कभी अपने और कभी मेरे लहजे में बोलते रहे होंगे, यानी फ्रॉड कर रहे थे, मुझे उल्लू बना रहे थे। अरे बच्चे को चांद से और महबूब को ख्याल यार से बहलाना फ्रॉड नहीं है। वो मुस्कुराने लगी, फिर हंसने लगी।
दूर से मुझे घोंसा दिखाने लगी। मैंने भी मुस्कुराकर उसे देखा। फिर जलाल शाह को हातिम शहरयार की हवेली में होने वाले तमाम वाकयात सुनाए। उसे अपनी असलियत भी बता दी। उसने मेरे घुटनों पर हाथ रखकर कहा, आप फरहाद साहब हैं और अब तक नजूमी अरसलान बनकर रहे। आप दोनों ही हैसियतों से मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं। क्या अब भी आप बाप बेटे अरसलान और हमाद बनकर रहेंगे? हमारे पासपोर्ट और दीगर अहम कागजात इन्हीं नामों से हैं। हमें इसी भेस में रहना होगा। आपकी आमद का मकसद क्या है? मौजूदा कागजात की रौ से हम सहाफ़ी हैं, लेकिन हकीकत में मौजूदा आलमी सियासत के आईनादार हैं। मैं आईना दिखा रहा हूँ कि पसमानदा ममालिक में और ख़ास तौर पर नए इस्लामी ममालिक में कैसी सियासी चालबाजियाँ हो रही हैं और मुसलमानों को आपस में किस तरह लड़ाया जा रहा है। वो बोला, बेशक हमारे अफ़गानिस्तान में पख्तून मुजाहिदीन, ईरानी शिया मुजाहिदीन, उज़्बेक मिलिशिया वगैरह कितने ही गिरोह आपस में लड़ रहे हैं, जबकि ये सब के सब मुसलमान हैं। सारी दुनिया के मुसलमानों का यही अलमिया है। बुरे वक्त में ये सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और एक दूसरे को तबाह बर्बाद और नाबूद करने की हद तक लड़ते हैं। जी हाँ, लेबनान में सुन्नी और शिया मुसलमान लड़ते हैं। फिर इराक और ईरान ने दिल खोल कर जंग की। फिर सऊदी अरब की ज़मीन पर कुवैत की आज़ादी के बहाने मुसलमान ममालिक के हज़ारों लाखों सिपाही खाक और खून में मिल गए। इराक के 40% मुसलमान मारे गए। अब अफ़गानिस्तान में भी यही हो रहा है। मैंने कहा, मुसलमानों को सब कुछ मिलता है, सिर्फ अकल नहीं मिलती। जलाल शाह ने पूछा, क्या आप टेलीपैथी के ज़रिए उन सब के दिमागों को दुरुस्त नहीं कर सकते? उन सब को दुरुस्त और मुत्तहिद रखने वाली एक ही किताब कुरान मजीद है। उस किताब की रोशनी फैलाने वाले हमारे एक रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये तमाम मुसलमान सरवरे कायनात की हिदायत एक दूसरे को बड़ी अकीदत से सुनाते हैं, फिर बड़ी ताकत और तकब्बुर से अपने ही मुसलमानों का खून बहाते हैं। बड़ी किरात से कलाम पाक पढ़ते हैं और उसमें पड़े हुए इस्लामी दस्तूर को भुलाकर बड़े बड़े मुमालिक के चमचे बन जाते हैं। मस्जिदों में एक ही खुदा को सजदा करते हैं और मस्जिदों से बाहर आकर सजदा करने वाली गर्दनें काट देते हैं। खुदा जब किसी कौम से नाराज़ होता है तो उसे इसी तरह अकल का अंधा बना देता है। जलाल शाह अपने मुल्क के हालात से मायूस था, सर झुकाए मेरी बातें सुन रहा था। मैंने कहा, टेलीपैथी के ज़रिए 2 या 4 या 10 को राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाती है। पूरी कौम का किबला दुरुस्त नहीं किया जा सकता। हमने माजी में वक्तन फ़वक्तन कई अफराद को गुमराही से बचाया। वो राह रास्त पर आए, लेकिन फिर किसी लालच या हवस में पड़कर गुमराह हो गए। टेलीपैथी की तलवार हमेशा सर पर नहीं लटकती, इसलिए तौबा करने वाले फिर तौबा तोड़ देते हैं। उसने पूछा, आपकी टेलीपैथी से हमारे मुल्क को किस हद तक मदद मिल सकती है? मैंने कहा, इस मुल्क में 2 टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन फ्रेज़र और पास्को रूट आए थे। इससे पहले कि वो मुजाहिदीन के दिमागों को शैतानी टेलीपैथी से जकड़ लेते, मैंने उन्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। मैंने एक ज़रा तवक्कुफ़ से कहा, तुमने पूछा है मैं किस हद तक मदद कर सकता हूँ, तो मेरी तरफ से यही इमदाद है कि मैं यहाँ दुश्मनों को टेलीपैथी के हरबे आजमाने नहीं दूंगा। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, हम टेलीपैथी जानने वाले 9 आज़ाद इस्लामी ममालिक में जमहूरियत कायम नहीं कर सकते। जमहूरियत किसी भी मुल्क के अवाम कायम करते हैं, हम तो सिर्फ दुश्मनों की चालों का तोड़ करते रहते हैं। उसने पूछा, आगे कहाँ जाने का इरादा है? हम यहाँ से बल्ख जाएंगे। सुपर पावर्स ने वहाँ अपने दफातर और खुफिया अड्डे बना रखे हैं। ठीक है, सुबह रवाना होंगे। आज रात इसी इमारत में गुजारेंगे। यहाँ हिज़्ब मोमिन के मुजाहिदीन हमारे दोस्त हैं। अगर हातिम शहरयार के हमायती तूबा खानम की तलाश में आएंगे तो यहाँ से उनकी लाशें जाएंगी। हमने रात वहाँ गुजारी। खाने के बाद इमारत के सामने एक बड़े बाग में खेल तमाशे और गीत संगीत की महफिल मुनक्किद हुई। वहाँ तफरीह का यही एक ज़रिया रह गया था। बड़े बड़े शहरों में सिनेमा हॉल और तफरीह गाहें बंद हो चुकी थीं। गोले बारूद के धमाके सुनते रहने वाले कभी कभी मौसीकी की मुतरन्नम आवाज़ें सुनते थे और एक दूसरे को लतीफ़े सुनाकर खूब हंसते थे, क्योंकि अगला कोई भी लम्हा मातम का हो सकता था। वहाँ हमारे लिए 4 कमरे मखसूस थे। हम रात के 11 बजे सोने के लिए अपने अपने कमरे में आ गए। तूबा और पारस के कमरों के दरमियान एक दरवाज़ा था। वो रात गए तक खुला रहा। वो देर तक उसके कमरे में बैठी रही और बातें करती रही। उसका जी नहीं चाहता था कि अपने कमरे में जाए। वो चाहती थी कि पारस फूल खिलने और दिल धड़कने की बातें करे, और पारस इसी मौजू से कतरा रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि वो फरिश्ता बन गया था। शायद ही कोई ऐसा हो जो हसीन और जवान औरत के साथ रात की तन्हाई में फरिश्ता बन जाता हो। दिल तो मचलता है, शैतान तो बहकाता है,
लेकिन वो इस पहलू से कतरा रहा था कि जिसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता उसके साथ रात नहीं गुजारना चाहिए, जिसके साथ वफा ना हो सके उसके साथ मोहब्बत का खेल नहीं खेलना चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो दामन बचाकर निकलना चाहिए। ऐसी बात भी नहीं थी कि तूबा खानम में कशिश ना हो, उसके हुस्न में, सरापे में और शख्सियत में तौबा तोड़ने वाली कशिश थी। लेकिन दुनिया में लाखों हसीनाएं हैं जो पहली नज़र में दीवाना बना देती हैं। आदमी कहाँ कहाँ दीवाना बने। पारस नगर नगर जाता था और डगर डगर पर हसीन बलाएं मिलती थीं। अगर वो हर एक को गले का हार बनाता जाता तो किसी दिन हार के बोझ से गर्दन ही टूट जाती। रात के 1 बजे वो बोली, ये तुम्हारी नींद और आराम का वक्त है और मैं तुम्हें जगा रही हूँ। वो बोला, सिर्फ जगा ही नहीं रही हो, मेरे लिए जाग भी रही हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मगर तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। ये तासुर दोस्ती तक कायम रहे तो अच्छा है, बात इश्क व मोहब्बत तक बढ़ेगी तो हम मसाइल में गिरफ्तार हो जाएंगे। उसने पूछा, कैसे मसाइल? यही कि मैं एक मुसाफिर हूँ, आज हूँ कल चला जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा ये खुद नहीं जानता। कभी कोई मंजिल, कोई घर तो बनाओगे। आज मेरे वतन में आग और खून की बारिश हो रही है, कल खुदा ने चाहा तो अमनो अमान होगा, हम यहाँ अपना घर बसा सकते हैं। जिस दिन मैं किसी एक मकाम पर ठहर जाऊँगा वो दुश्मनों के लिए ईद का दिन होगा। हम भेस बदल कर और जगह बदल बदल कर उन्हें धोखा देते हैं, इसलिए ज़िंदा रहते हैं। आखिर तुम लोगों ने सुपर पावर से दुश्मनी क्यों मोल ली है? इसलिए कि सुपर पावर्स दोस्त नहीं बनाते, ग़ुलाम बनाते हैं, और हमें ग़ुलामी मंजूर नहीं। तूबा ने उसे नज़र भर के देखा, उसकी आंखों से नशा छलक रहा था। वो बोली, क्या तुम पत्थर हो? मेरी ज़ात में कोई कशिश महसूस नहीं करते? तुम बहुत पुरकशिश हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए खूबसूरत जज्बे हैं। मैं तुमसे कोई रिश्ता जोड़कर फिर तुमसे दूर होकर खूबसूरत जज्बों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तुम जब से मिले हो मेरे दिल में घर करते जा रहे हो। मैं सोचती रहती हूँ तुमसे जुदाई होगी तो कैसे बर्दाश्त करूँगी। मैं उलझ कर रह गई हूँ। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं अपनी ज़मीन पर 14 बरस से जंग लड़ती आ रही हूँ। मुझे यहाँ की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि मैं इससे अलग नहीं हो सकती। मैं फौलाद हूँ, बड़े ज़ख्म खा चुकी हूँ। देखूंगी कि तुम्हारी जुदाई का ज़ख्म कितना गहरा होगा। पारस ने कहा, अभी कुछ रोज़ हमारा साथ रहेगा। पापा चाहते हैं कि तुम मुहिब्बे वतन मुजाहिदीन के गिरोह में शामिल हो जाओ, या अपनी अलग तंजीम बनाना चाहो तो तुम्हें असलहा, डॉलर्स और पाउंड्स की कमी नहीं होगी। ये सब कुछ मुझे कहाँ से हासिल होगा? पापा एक इशारा करेंगे, हुकूमत फ़्रांस तुम्हारे लिए ख़जाने का मुंह खोल देगी। वो बोली, हिज़्ब मोमिन के मुजाहिदीन सच्चे और मुहिब्बे वतन हैं। हमारे यहाँ औरतों को बेपर्दगी की इजाज़त नहीं है। अगर मेरी तरफ से इन्हें असलहा और माली इमदाद हासिल होगी तो मैं इनके दरमियान खुद मुख्तार रह सकूँगी। कोई मेरे कहीं आने जाने और किसी से मिलने जुलने पर एतराज़ नहीं करेगा। अच्छी बात है, कल ये मामलात तय हो जाएंगे। अब जाकर आराम करो। वो जाना नहीं चाहती थी। उसने झुकी झुकी नज़रों से मगर भरपूर नज़रों से देखा, फिर बेदिली से उठ गई। पारस भी उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ चलता हुआ दरमियानी दरवाजे तक आया। वो दरवाज़ा एक सरहद की लकीर की तरह था। इधर पारस की मुमलिकत में शब ख्वाबी थी, उधर तूबा की नगरी में शब बेदारी थी। इधर सुलाने वाला था, उधर जगाने वाली नामुरादियाँ थीं। वो उस पार जाती, दरवाज़ा बंद हो जाता तो सुबह से पहले ना खुलता, और मोहब्बत का जो दरवाज़ा दोबारा ना खुले उसे बंद नहीं होना चाहिए। पारस ने अलविदाई मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया। तूबा ने उसे थाम लिया, जैसे हाथ थाम कर भागते हुए वक्त को गिरफ्तार कर लेने का मौका मिल गया हो। कभी कभी कोई लम्हा थम जाता है, मुसाफहे की दहलीज पर जम जाता है। खामोश जज्बे पूछते हैं, अब क्या होगा? वही होगा जो फितरत का तकाजा है और कुदरत का उसूल है, और उसूल ये है कि खाल अपने गोश्त से अलग नहीं होती और गोश्त अपनी खाल से जुदा नहीं होता। जी हाँ, बाज़ हालात में खुदा हाफिज़ कहने वाले बिछड़ नहीं पाते, उनका खुदा ही हाफिज़ होता है। मैं अपने कमरे में था और बिस्तर पर बैठा हुआ था। ये वही इमारत थी जिसके एक कमरे में पारस, दूसरे में तूबा और तीसरे कमरे में जलाल शाह सो रहा था, और ये वही जगह थी जहां मरीना आत्मा शक्ति के ज़रिए आई थी। मैंने आज तक जितने ख्याल ख्वानी करने वालों को ट्रैप किया है उन्हें सलमान, सुल्ताना और लैला के हवाले करता रहा हूँ ताकि वो उन्हें अपना मामूल बनाकर अपनी निगरानी में रखें। एक वक्त ऐसा आया था जब सुपर मास्टर के दर्जनों ख्याल ख्वानी करने वाले, मसलन पॉल हॉपकिन, टैटू सैंटाना,
जोरा जोरी, जूडी नॉर्मन, वार्नर हेग, जॉन गावी, जे मॉर्गन और ऐसे ही कितने हमारे काबू में आ गए थे। मैंने मरीना को बेटी बनाकर उसका दिल जीतने के लिए अक्सर ख्याल ख्वानी करने वालों को उसके हवाले कर दिया था। वो हम पर एतमाद कर सकती थी, हमारी बेटी बनकर रह सकती थी, लेकिन उसने ज़बरदस्त धोखा दिया था। इन हालात के पेश नज़र मैंने मरीना पर तरमीमी अमल करके उसे अपनी मामूला बना लिया था और ये तय किया था कि सलमान वगैरह को उसकी निगरानी पर मामूर नहीं करूँगा, खुद उस पर नज़र रखूँगा और उसे फिर कभी फ्रॉड करने का मौका नहीं दूंगा। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।